बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سب سے پہلے تو یہ گزارش کرنی تھی کہ میرا چینل رضا گارڈن سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ میرا آج کا موضوع جو ہے وہ شعر و ادب ہے۔ شعر و ادب میں جو سب سے پہلے آتا ہے وہ شاعری آتی ہے۔ شاعری جہاں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو انسان چاہتا ہے جو لکھنے والا ہے اس سے میرا تعارف بھی ہو جائے کہ وہ کون شخصیت ہے۔ تو آج کا جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ جناب محترم جاوید آصف صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا تعلق ضلع راجن پور سے ہے، جو جنوبی پنجاب بھی کہلاتا ہے عرف عام میں۔ تو ہو سکتا ہے ان کو اس بات سے اختلاف ہو، لیکن یہ صرف میں تعارف کے طور پر بتاتا ہوں۔ تو ان کی جو کلام ہے، جو شاعری ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ 5 کتابیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتابیں جو ہیں جو میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ پہلی جو کتاب ہے اس کا نام ہے وساندر۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے وساندر، یہ ان کی پہلی تصنیف ہے وساندر کے نام سے۔ اس کے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں کہ ان کے کتابوں کے بارے میں وہ یہ خود ہی بتائیں گے۔ میں صرف تعارف کے طور پر بتا رہا ہوں، جو انہوں نے کتابیں جو ابھی تک تصنیف کی ہیں ان کا صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے لئی ہار۔ یہ کیونکہ سرائکی زبان میں ہیں تو ہم آگے چل کر ان سے پوچھیں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے، وساندر کس چیز کو کہتے ہیں، لئی ہار کا جو سرائکی بولنے والے سمجھنے والے ان کے لیے تو یہ لفظ معروف ہیں، البتہ جو سرائکی زبان سے لوگ واقف نہیں ہیں ان کے لیے ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے کھارے چڑھ دیے، یہ ہاں کھارے چڑھ دی سکھ، کھارے چڑھ دی سکھ ہے یہ کتاب ہے، یہ تیسری کتاب ہے ان کی۔ آگے ان کی کتاب ہے سرائکی میتھالوجی، چوتھی کتاب ہے سرائکی میتھالوجی۔ جب اس کی تقریب ہوئی تھی تو مجھے بھی یہ شرف ملا تھا کہ میں اس میں شریک تھا اور اس پہ مجھے گفتگو کا بھی موقع ملا تھا، وہ ان کی مہربانی سے تھا۔ سرائکی میتھالوجی، اور یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے جنگ کچاویں چڑھی، یہ جنگ کچاویں چڑھی، یہ 5ویں کتاب ہے ان کی۔ اب ہم جناب محترم جاوید آصف صاحب سے گزارش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو جاوید صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو تعلق ہے انتہائی پسماندہ علاقے سے ہے، اور آپ نے جو کام کا انتخاب کیا ہے وہ بھی مشکل ہے، وہ شاعری کا آپ نے انتخاب کیا، کیا یہ آپ کو بچپن سے شوق تھا؟ وعلیکم السلام صاحب، آپ کو بہت شکریہ جی۔ شاعری کا شوق مجھے تقریباً بچپن سے تھا، اور ایک میرے دوست تھے، وہ ہمیشہ مشاعروں کی کیسٹیں لاتے تھے اور ہم اکٹھے بیٹھ کر، کیسٹوں کا دور تھا اور ہم اکٹھے مشاعرے سنتے تھے، اور اس طرح ہم مشاعروں میں بھی جانے لگے اور خود بھی تھوڑا بہت لکھنے لگے، بس تب سے شروع ہے۔ اچھا، یہ آپ بتائیں گے کہ بھی پہلا جو آپ نے کلام لکھا تھا یا شعر لکھا تھا وہ کس عمر میں تھا؟ کوئی 16-17 سال کی عمر میں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو آج یہ اکثر لوگ جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی ان کو جو کلام لکھنے کی وجہ بنتی ہے وہ کوئی عاشق اور محبوب اور اس طرح کا جو کنسیپٹ ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ وہ کچھ ہوا تو ضرور ہوگا۔ اچھا، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جس کے باعث شاعری شروع کی، پھر روٹین ورک بن گیا۔ اچھا، تو ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی آپ نے جاری رکھا، کب کہاں تک آپ نے مقصد ہے؟ BA تک تعلیم حاصل کی ہے، وہ بھی علامہ اقبال سے۔ FA تک تو باقاعدہ طور پر، اس کے بعد PTC کی اور پرائیویٹ سکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ BA بعد میں پھر تو آپ ابھی جو ہے روزگار کا سلسلہ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے؟ جی، پرائیویٹ سکول۔ صحیح۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ بھی اتنی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تو کتاب لکھنا اور اس کو چھپوانا انتہائی مشکل کام ہے، اور بظاہر ایک سکول ٹیچر جو ہے اس کے
इतने अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ये सारा कोई इदारे आपके साथ ताउन करते हैं या आप खुद ही सारा अफोर्ड करते हैं? नहीं सर, इदारे तो बिल्कुल नहीं करते। पहले तो हम खुद अपनी पेट काट कर किताबें छपवाते हैं। कब दोस्त भी मदद करते हैं किताब छपवाने में। बस इस तरह गुजारा हो जाता है। और एक मैंने नावल लिखा है, वो वाशी तकी के 22वीं तक नहीं शायद हो सका, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अक्सर पाकिस्तान में ज़ाहिर है किताब लिखना और उसको छपवाना ज़ाहिर है सबके लिए मुश्किलात हैं। आप समझते हैं कि जो सराइकी ज़बान में शायरी है या नावल निगारी है, तो उसके लिए क्या मुश्किलात हैं? हमें तो कुछ मुश्किलात नहीं नज़र आती, क्योंकि हमारी मादरी ज़ुबान है और हम इससे मोहब्बत करते हैं और इसमें अपने ख्यालात भी शेयर करना चाहते हैं दोस्तों के साथ। सही। बस मुआशी मुश्किलात पे दरपेश रहती हैं उनको किताबों को छपवाने में, डिस्ट्रीब्यूशन वो रहती है। सही। और किताब छपवाने में इतना खर्च नहीं होता जितना दोस्तों को मुफ्त भेजने में हो जाता है। अच्छा, एक तो किताब भी भेजनी और भेजनी भी अपने खर्चे पे, ये मुश्किलात ज्यादा आती हैं। एक मरतबा मैंने फेसबुक पे भी यही पोस्ट लगाई थी, यार किताबें तो छपवाते भी दोस्तों के लिए हैं, लेकिन ये मुश्किलात होती है कि एक एक दिन में हमें 1000-1500 लग जाते हैं किताब भेजने में दोस्तों के पास। सही। जो कि एक प्राइवेट स्कूल टीचर के लिए बहुत मुश्किल है। चले, जो अभी आपके दोस्त सुन रहे हैं उनके लिए ये पैगाम है कि वो किताब तो बेशक मंगवाया करें आपसे, लेकिन ये कम से कम अपने खर्चे के ऊपर, कम से कम किताब का वो खर्चा खुद बर्दाश्त करें, ये मैं उनसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें जो आपका मुंतखब कलाम है, यकीनन आप मुशायरों में भी शिरकत करते होंगे, तो ज़्यादातर आपसे अवाम की तरफ से क्या डिमांड आती है, क्या सुनना पसंद करते हैं लोग? मैं तो तकरीबन गज़ल की शायरी करता हूँ और गज़लें ही पढ़ता हूँ। मुशायरे बहुत कम पढ़ता हूँ। अच्छा। बस किताब जो लिखता हूँ किताब शायद करके दोस्तों में बांट देता हूँ। अच्छा, तो ये आपकी किताबों में मैं देख रहा था कि काफ़ी बड़े बड़े दानिश्वरों के, जैसे ये मेरे ख्याल में मोहतरमा हैं डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा, इनका है, और यहाँ के जो बाकी काफ़ी लोग हैं उन्होंने इस पे लिखा हुआ है। तो ये पहले किताब आप उनको भिजवा देते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है इसका? जी, कोई पेश लफ्ज़ वगैरह लिखवाना हो, आर्टिकल लिखवाना हो तो किताब भेजनी पड़ती है। बगैर किताब के तो जो होगा वो तो गैर जानिब तौर पर नहीं होगा। सही है। वो तो मोहब्बत में लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक मेरे हाथ में एक किताब है, इसका बज़ाहिर नाम तो जान कचावें चढ़ी, तो इसमें मैंने पहले भी आपने मुझे ये गिफ्ट किया था, पढ़ा था, तो इसमें आपने जहाँ पे नात रसूल मकबूल और अहले बैत कराम को जो चीज़ें हदिया की हैं, तो उसमें पढ़ के आपके ये ख्यालात और तसव्वुरात मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि आपने इतनी गहरी जाके बात की है। वो जो शायद वो जो करबला का पैगाम है उसको आपने अपने जो लफ्ज़ों में बयान किया है, तो ये वाकई मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन था। तो अपने नाजरीन के लिए मैं ये जो चंद अशार हैं वो सुनवाए देता हूँ। सराइकी ज़बान में है, लेकिन मेरे ख्याल में जो गम हुसैन है उसको सराइकी ज़बान में जिस तरह शोरा और जो पढ़ने वाले बयान करते हैं वो वाकई काबिल दीद है। इनका कलाम है, बेताब है ज़हरा दी न्याणी नहीं पहुँचा, अफसोस अजा तई कई मुकानी नहीं पहुँचा, बेगौर कफन पैन थे सादात दे लाशे, शोहदा दा संभलवान कई बाणी नहीं पहुँचा, हानी नहीं पहुँचा। अच्छा, ये हानी का क्या मतलब है? मददगार। अच्छा, उए ता लिखे ढेर किन्हे करब बलाकू, कई करब दे एहसास दी तह ताणी नहीं पहुँचा, अब्बास को बाजू दे कटीजन तू ज्यादा, डुखहा जो मसूमे तोने पानी नहीं पहुँचा, जो
चौगोठ सदीदा सुनीदार ये हाल मेंदा हुकारा चौगोठ सुनीदार ये हाल मेंदा हुकारा सादात पर कोई भी मदद तानी नहीं पहुंची। वाह 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 वाह। ते ये जो आपने मकसद है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिर में हाल में नासिर यंसुरना की जो सदा दी थी, तो आपने आखिर में इस पैगाम को इस खूबसूरत अंदाज में जो भेजा है, तो इसकी क्या आपकी क्या सोच फिक्र कहाँ से ये पैदा हुई थी, इस पे आपने कैसे नजर? सर करबला एक बहुत बड़ा अलमिया है और हमेशा दिल में परवरिश पाता रहता है, इंसान के खून में शामिल होता है। ये बस उसी बहस हुआ होगा। सही। हमारी कोई नहीं, माशाल्लाह आपने इसमें बहुत ही जो इतना गहरा पैगाम है वो उसको उसकी ऐसे वजाहत की है कि इंसान को समझ आ जाती है कि जो शायर की निगाह है वो कितनी गहरी है। तो मैंने पहले भी इस पे काफ़ी वो सोचा है, फिक्र किया, तो मेरे जहन में ये सवाल था कि आपसे इसके बारे में ज़रूर पूछूंगा। सर ये कोशिश यही होती है कि ऐसे मौज़ूआत पे लिखा जाए और इस तरह लिखा जाए जिस तरह पहले ना लिखा गया हो, चरबा ना हो। कोशिश तो यही होती है अपने रंग से लिखा जाए, बस जहाँ तक कामयाबी होती है बस। अच्छा, एक आपकी किताब है सराय की मिथालोजी, ये तहकीक है आपकी, तो इसका बेसिक थीम क्या है? ये मिथ्ये हैं, मिसाल के तौर पर इस किताब में मिथ्ये हैं जो हम कहते हैं ना, कहाँ कांधे कोठे पे बैठा हुआ बोल रहा है तो मेहमान आएंगे, और कोई किसी को पीछे से बुलाएंगे तो उसका काम नहीं होगा, इस तरह की ज़रबुल अमसाल जिसे कहते हैं, ये वो नहीं, वो चीज़ नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि दुकानदार सुबह के वक्त उधार सौदा नहीं देते, उनके जहन में ये होता है कि अगर सुबह सुबह उधार देंगे तो सारा दिन उधार चलता रहेगा। मकसद है ये कोई किताबी बातें नहीं है, जी, लेकिन मुआशरे में इस तरह ये पैवस्त हैं, लोग शायद किताबी बातों पे इतना ध्यान नहीं देते, इनको ज्यादा फॉलो करते हैं। उन चीजों को आपने जो यहाँ पे सराय की जबान में चीजें राइज हैं, उनको आपने इस पे किताब में सर ये पहला काम है। इससे पहले किसी और बंदे का ये काम नहीं आपकी नजर में वो देखा नहीं है? जी, सराय की में नहीं हुआ। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है जी। जो सराय की ज़बान से दिलचस्पी रखने वाले हैं उनके लिए मेरे ख्याल में जो हमारे नौजवान नस्ल है उनके लिए बेहतरीन किताब है। मैं सजेस्ट करूंगा कि वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें और ज़रूर देखें कि इसमें क्या चीज़ें हैं। और सर कोई इसमें जो ये खारे चढ़ती सिक है, इसमें से कोई आपका क्या, मैंने नहीं पढ़ी वैसे ये किताब, आप ज़रूर पढ़ूंगा। ये खारे चढ़ती सिक, ये पहले शादियाँ होती थी ना सकाफती तौर पर, गोद को नौशब बन रहे को खारे पे बिठाया जाता था और कुंवर को बिठाते थे। कुंवर को जो गोट होता था वो उसे उठा कर खारे से नीचे बिठाता था। ये उस सकाफत को उजागर करने के लिए इसका नाम रखा गया है। यानी हमारा मकसद ये था कि खारे चढ़ती सिक, हमने एक सिक को, एक फिक्र को पाए तकमील तक पहुंचा दिया। इस्लाही मामला सही। अच्छा, ये एक और किताब है लईहार। लईहार का क्या मतलब है? लईहार जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, लव करते हैं, गंदम काटते हैं, उन्हें लईहार कहते हैं। ये अफसानवी मजमूआ है, इसमें सराय की कहानियां हैं, अफसाने। अच्छा, और ये एक किताब है मेरे हाथ में, विसांदर। विसांदर, विसांदर के लफ्जी मानी तो आग के हैं, लेकिन हमने इस्तिलाही मानों में रोशनी के मानों में इस्तेमाल किया है विसांदर। इस्तिलाही मानों में विसांदर यानी रोशनी। सही। हमारे देहातों में अब भी औरतें चूल्हे पे बैठकर कसम खाती है, अगर कोई किसी को यकीन दिलाना हो, आपस में यकीन दिलाना हो, तो वो कहते हैं कि मुझे विसांदर की कसम। अच्छा, विसांदर वैसे आग को कहते हैं कि मैं भी झूठ नहीं बोल रहा। जी, जी, ये इतनी बड़ी कसम तस्वर होती है। जी, जी। अग्नि की कसम। अच्छा, इस तरह भी कह सकते हैं ना। सही।
क्योंकि आग की भी पूजा की जाती थी। अच्छा अच्छा, ये तब से शायद रिवाज हो। जी, शायद होगा। हाँ हाँ। तो अच्छा नाजरीन, मैं एक और बात भी बताऊं कि जो हमारे भाई हैं मोहतरम जावेद आसिफ साहब, जिनका आप इंटरव्यू देख रहे हैं, ये माशाल्लाह जब अपना कलाम सुनवाते हैं तो इनके वो तरन्नुम में सुनाते हैं और इनकी बेहतरीन आवाज़ है। तो हमारे पास वो कोई बाकायदा वो उसकी माइक वगैरह की सहूलत तो नहीं है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा जावेद आसिफ साहब से कोई अपना मुंतखब कलाम में से हमें ज़रूर सुनवाएं। जनाब जावेद आसिफ साहब। कल रात मैं सोचा पिया, क्या क्या खुदा सोना बने। कल रात मैं सोचा पिया, क्या क्या खुदा सोना बने। तेरी वजह तेरी शक्ल तेरा अला सोना बने। कल रात मैं सुभान अल्लाह। तेरे हिक हिक नक्श को, तेरे हिक हिक नक्श को हिक बेतु वध जोड़े ठहाए। तेरे हिक हिक नक्श को, तेरे हिक हिक नक्श को हिक बेतु वध जोड़े ठाहे। ते को बना ते वला सादा बना सोना बनाए। कल रात मैं सोचा पिया, क्या क्या खुदा सोना बने। कल रात मैं शेर कैसे सुन दूं जो ई कैनात दी, सुन दूं जो ई कैनात दी। तकमील ते छीदी लगन, सुन दूं जो ई कैनात दी, सुन दूं जो ई कैनात दी। तकमील ते छीदी लगन। मेरा ख्याल चार दी ते को ब्या सोना बने। कल रात मैं सोचा पिया, क्या क्या खुदा सोना बने। कल रात मैं साचे जोते को देखते, साचे जोते को देखते। चेते गजल आइए ऊंदे। ये थोड़ी गल का जवाब है। साचे जोते को देखते, साचे जोते को देखते। चेते गजल आइए ऊंदे। आसिफ जे को लफ्ज़ें दा बस चोला पवा सोना बने। कल रात मैं सोचा पिया, क्या क्या खुदा सोना बने। कल रात में। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। आसिफ जेकू लफ्ज़ें दा चोला पवा सोना बनाए। ये हम जनाब मोहतरम जावेद आसिफ साहब। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मेहमान, नेक्स्ट शख्सियत के साथ इस तारफ़ी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके खिदमत में दोबारा पेश होंगे। चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।